that, I'd like to introduce the man of the moment. A poet, a warrior, a philosopher, a wordsmith. What would be apt to describe the immensely talented Saeed Qadri, the man of valued words and words that matter? भीगे होंठ तेरे मौला मेरे मौला इन दिनों कहाँ न कहो दिल कह रहा है ओरे खुदा आवारापन lyrics that are immortal. They have been penned by this amazing man, the winner of the Best Lyricist Award at the 6th IFA Awards and the Standout Performance by Lyricist at the Stardust Awards for Murder. Saeed Qadri Saab is behind the lyrics of many successful films, including Jism, Saya, Paap, Rogue, Zehar, Nazar, Kalyug, Fareeb, Bas Ek Pal, Aisa Kyun Hai, ऐसा क्यों होता है अनवर लाइफ इन अ मेट्रो द ट्रेन आवारापन वो लम्हे गैंगस्टर राज बिल्लू I can just go on, and most importantly, Chanat 1 and 2, Murder 1, 2, and 3, among others. But it's not been an easy journey from Jodhpur to Mumbai and the Indian film industry and the transition from being an LIC agent to a respected and revered poet. The fact that he was an LIC agent shows how well we treat our lyricists in India today. I think for this man, we need to first clap for him. Can we all please clap for Mr. Saeed Qadri? In this world that rarely understands the story behind the poet's immortal verses, ask Qadri Saab how does he feel, and he will simply call his poems an expression of his avargi or avarapan as he would term it. And I was checking the internet, and it said avarapan was a word actually coined by him. So that's pretty interesting. And today we are here to release a book of poems aptly titled Avarapan, a summation of his journey. We have with us the revered Mahesh Bhatt Saab, the immensely talented singer-composer, performer par excellence, Mithun, मुकेश भट्ट जी नरेंद्र बजाज जी चिराग बजाज जयंतीलाल गाडा जी श्याम बजाज जी and a whole load of people that who would love to be here to be a part of Saeed Qadri Saab's journey, and of course Ali Peter John, whom I think has been there since journalism ever started, and I'm sure for all of us who basked in the songs that he's contributed for the immortal verses. Sir, you already ensured our lives with our lyrics. Over to Sahil. He will shed some more light on Qadri Saab. Sahil, please. Hello, thank you, Anisha. Good evening, everyone. I thank each one of you who have come here, who have taken out their time from a busy schedule for such a wonderful evening. We are here for the launch of Avarapan, his first poetry collection. Sorry. Qadri Saab needs no introduction. With his glorious career in the Hindi film industry, he has defined himself as the most lovable and talented lyricist writer. His work has always been a part of that revolution which has given a new color and heights to the music industry. Like coming up to his book Avarapan, I will not say it's a book, it's his ups and downs summarized in his own words, his suns and moon, like which we're gonna read and we're gonna find out like it is nowhere like it's very near to our own life story. Whenever like this is the reason all the readers have found himself as a part of their own life. There are many reputed personalities here who have worked with him and who also share a very beautiful relation with him personally and professionally. So they are the better one who can throw a light at Saeed Qadri Saab. So I would request very talented and the lovable Mithun Bhaiya, music composer and director, to come up on the stage and enrich us with his thoughts. Thank you. Thank you, Sahil. Good evening, everyone. Actually, यहाँ पर आके बात करना मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है. मुझे इस अपने करियर में 14 साल हो गए. जब मैं 16 साल का था, मैंने ये फैसला लिया था कि मैं हिंदी फिल्म में एक हिंदी फिल्म म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहता हूँ. और देखिए, म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन हिंदी सिनेमा म्यूज़िक itself is something that needs to be studied, learned, understood and respected. और मेरे फादर जो यहाँ पर है नरेश शर्मा जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कंपोजर बनना है so as equal as your own expression you have to find your partner in crime, which would be the poet. And my father would take me down to the works of the greats. जितने भी legendary गाने हम सुनते हैं जो हिंदी सिनेमा के फाउंडेशनल एक्सप्रेशंस रहे हैं. आई सॉ शंकर जयकिशन हैड हसरत जयपुरी, मदन मोहन साहब हैड राजा मेहदी अली खान, and Sahir Saab obviously.
R.D. Burman had Majdu Sultanpuri, Lakshmikant Parlal had Anand Bakshi, and I saw that these greats, they were not just solo greats, but it was a joint expression of these two people. और मुझे अपना सफ़र शुरू करना था, और वो एक ऐसा दौर था, मैं बात कर रहा हूँ 2004 की, when the quest for sound was overtaking the passion for expression. सब लोग ऐसे दीवाने हो गए थे. There was a generation coming up that was putting all their energies into sound, and this is my personal opinion, I could be wrong. But I wanted to go back. That's what I learned from my father, and also a few very iconic people who influenced me at the age of 19, who are very present in this room over here. But I will come to that later. And at ऐसे time पे I had the privilege, Mukesh Bhatt, who is present over here, what a blessing he has been, because he introduced me to the great Saeed Qadri Saab. And हमारा पहला गाना साथ में था from the film Zehar 2005, वो लम्हे वो बातें. उसके बाद हमने एक दूसरे गाने पे काम किया, जो मैं ये घटना यहाँ पे आप लोगों से बांटना चाहूँगा. हमने एक मुकेश जी की फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे जिसका नाम था कलयुग, एंड मोहित सूरी वॉज द डायरेक्टर. और वी हैड गॉट द ब्रीफ, और धुन भी मुझे मिली थी. और मैंने सईद साहब से फ़ोन पे मैं बात कर रहा था कि इस गाने का, इस किस्म का हमें इसके ऊपर काम करना है, तो मैं आपको जो है सीडी भेज देता हूँ, आप सुन के मुझे आप लिख के दे दीजिए. तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा कि सीडी तो पहुंच जाएगी, ज़रा मुझे गुनगुना के तो सुना. एंड उसी वक्त फ़ोन पे मैंने उसकी जो तर्ज है गुनगुनाई, एंड उसी वक्त उन्होंने मुझे लिख के दिया. विद इन अबाउट 10 सेकेंड्स ही टोल्ड, तेरे पास पेन है? एंड ही रोट, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है. और ये शायरी जब मैंने भट्ट साहब के साथ बांटी, एंड भट्ट साहब सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. महेश भट्ट साहब ने कहा कि बाकी लफ्ज का इससे अच्छा इस्तेमाल मैंने कभी सुना नहीं. एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि मैं खुद भी सीख रहा था. आई वाज 20 years old, और तब मुझे मालूम पड़ रहा था कि क्यों शायरी होती है. क्योंकि लफ्ज तो है वो कानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शायरी है जो दिल तक पहुंचती है. सफर वहां पे रुका नहीं, बहुत सारे गाने मैंने उनके साथ किए हैं, अभी भी कर रहा हूं. इफ आई टॉक ऑफ सॉन्ग्स लाइक मौला मेरे मौला, लोग सुनते हुए ध्यान कभी देते नहीं, लेकिन अगर आपने सुना हो कि रख लूं छुपा के कहीं तुझको, साया भी तेरा नाम है दूं, रख लूं बना के कहीं घर में तुझे, साथ तेरे मैं ही रहूं, जुल्फे तेरी इतनी घनी, मैं याद इनको जब करता हूं, नहीं, जुल्फे तेरी इतनी घनी, देख के इनको ये सोचता हूं, साए में इनके मैं जीऊं. हम आगे करें. सो मेनी सॉन्ग्स इस किस्म के ऑनेस्ट एक्सप्रेशंस. दिल संभल जा जरा में सईद भाई ने लिखा कि जिस राह पे है घर तेरा, जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूं गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए, क्या पता ओ क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना. तो ये चलता रहा, दिस एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. एंड लोग अक्सर कहते हैं कि हाउ ब्लेसेड वर दोस जनरेशंस व्हेन राजा मेहदी खान वाज देयर, व्हेन साहिर लुधियानवी वाज देयर, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री. बहुत मुबारक दौर रहा है, लेकिन आई थिंक आज का दौर भी कोई कम मुबारक नहीं है. वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी आर इन द ईरा व्हेन वी हैव सईद कादरी साहब. थैंक यू. I think I would request Mukesh ji to speak something. Mukesh ji, would you please? Victor, I think so. You spoke so much about Sahil Bhai that I'll be only replicating what you said. But मैं ये कहूँगा कि सहीद भाई जैसे भाई, जैसे कलाकार, जैसे दोस्त, जैसे बोलते हैं ज़िंदगी के हम सफ़र जो रहे, वो इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो इतने करीबी से, इतने अपनापन दिखा के
काम करने वालों में से जो होते हैं। तो सईद भाई और हमारा एक फैमिली रिश्ता रहा है, और वी गो बियॉन्ड फिल्म्स, वी गो बियॉन्ड just making movies, making music. It's a very deep, very deeply felt emotion जो इनके साथ हम दोनों भाइयों का जुड़ा हुआ है। और इसके आगे मुझे लगता है भट्ट साहब सही कह पाएंगे सईद भाई के बारे में। भट्ट साहब को तो मैं सबसे आखिर में बुलाऊंगा, उससे पहले मेरे और बहुत सारे अजीज़ यहाँ हैं जिन्होंने हमेशा मुझ पे मेहरबान रहे, मेरी हौसला अफजाई की है, और आज वो यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं। मैं उनकी फ़िल्म लिखूं या नहीं लिखूं, पर उनसे ताल्लुकात आज भी बरकरार हैं। इसी सिलसिले में मैं कुमार साहब से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। मेरे ख्याल से मिथुन ने और मुकेश जी ने काफ़ी कुछ बोला है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। खाली आपसे एक बात पूछनी है। ये कहा जाता है कि आप ये जो दर्द भरे गाने लिखते हैं उसके पीछे कुछ राज है। तो ये क्या राज है वो बता दो सबको आज। वो राज सर ज़िंदगी को बहुत करीब से देखना, रिश्तों को बारीकी से जानने की हमेशा जद्दोजहद, वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदगी के जो तमाम मौसम होते हैं, जो आपकी सीधी बात बताओ ना, कौन सा मौसम गड़बड़ हो गया कुछ? वो मौसम सबकी जिंदगी में होते हैं। तो वो कोई ऐसी कुछ बात बताओ तो सबको। इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूंगा श्याम जी से, प्लीज। तो हेलो, सईद भाई के साथ में हमारा रिलेशन जो है ये फिल्मों से नहीं है और ये फैमिली रिलेशन है। जब भी ये बम्बई आते हैं ज़रूर फ़ोन करके मिलते हैं, या तो जोधपुर पे रहते हैं तो हमको फ़ोन करके बात करते रहते हैं रोज। इससे ज़्यादा क्या बोलना है। फैमिली रिलेशन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं यहाँ आज जो खड़ा हूँ या जो भी मैंने मकाम हासिल किया है, इसका क्रेडिट भट्ट परिवार को जाता है। मेरे बड़े भाई महेश भट्ट साहब, मुकेश जी, यहाँ पूजा है नहीं, पूजा भट्ट, ये तमाम लोग हैं जिनकी वजह से सईद कादरी बना, फिल्म इंडस्ट्री में आया और आज इस काबिल हुआ कि एक छोटी सी किताब निकाली। उस छोटी सी किताब को भी इज्जत देने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं तहे दिल से भट्ट साहब का और मुकेश जी का, श्याम जी, कुमार जी, रमेश जी यहाँ हैं नहीं, वो भी बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुझसे, और यहाँ जो तमाम लोग आए हैं, मेरे दोस्त नौशाद खान साहब, कोटा से तशरीफ़ लाए मेरे दोस्त गणेश तारे साहब, यंग टैलेंटेड सिंगर दर्शन रावल, एहसान अहरे साहब आइए तशरीफ़ लाएँ, मेरे दोस्त डायरेक्टर हैं ये, रूमी जाफरी साहब, और ऐसी बहुत सारी तमाम हस्तियाँ हैं जो भी जी बिल्कुल जिनकी मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और मैं गुजारिश करूँगा भट्ट साहब से कि प्लीज़ आएँ और इस किताब का अपने मुबारक हाथों से विमोचन करें। आइए सर, प्लीज़ आइए ना। हाँ बिल्कुल आइए सर, प्लीज़ आइए। श्याम जी, नहीं आप खोलें, बस आप लोग बिल्कुल। अरे सर बिल्कुल। मुकेश जी प्लीज, आप भी आए प्लीज। सर जयंती लाल जी, आप जयंती लाल जी प्लीज कम। कैसे पहुंचते कैसे? आइए कुमार जी, प्लीज आइए। हाँ बिल्कुल, आइए आप आइए ना प्लीज सर। इस काम के लिए तो कुमार जी आइए प्लीज, कुमार जी आइए। Anyone please come. नरेश जी प्लीज आ जाइए, आइए। अरे क्या ये तो बड़ा वर्जन है। हाँ ये बड़ा बाद में लाया
मोबाइल जी आइए ना बस बिल्कुल सरप्राइज भी पर हिंदी है मेरा कि कोई और बोल रहा है इसके अंदर से ये आपको पढ़ेंगे आप बोलेंगे आइए बाकी है तेरे यार एक सेकंड सॉरी पढ़ मीडिया के लिए करना नहीं मेरे बड़े भाई महेश भट्ट साहब का कहना है कि मैं अपनी कुछ चीज़ें 2-3 नज़में और एक गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं चाहूँगा भट्ट साहब को बुलाऊँगा, वो रोशनी मुझसे ज़्यादा बेहतर डाल पाएंगे। एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। भीड़ में रह के भी तन्हा यहाँ हर एक बशर, ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। और इसका किरदार है, किरदार बदल देता है। इसका किरदार है, किरदार बदल देता है। अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। इसका किरदार है, किरदार बदल देता है। अपनी शर्तों पे रखा करता है खुद में ये शहर। और तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है। तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है वो जो इंसान हुआ करता था तेरे अंदर। तुझे बताए बिना तुझ में ही मर जाता है वो जो इंसान हुआ करता था तेरे अंदर। और जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है। जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है। तेरा ज़मीर भी हो जाता है किसी की नज़र। जिंदा रहने को कभी ना कभी बिक जाता है। तेरा ज़मीर भी हो जाता है किसी की नज़र। और रोशनी इसकी अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। रोशनी इसकी अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। क्यों चांद गांव का तुम छोड़ के आए हो इधर। क्या बात क्यों चांद गांव का तुम छोड़ के आए हो इधर। ऐ मेरे दोस्त यही है तेरे ख्वाबों का शहर। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़ा भाई, वही खड़े रहना। हाँ मैं ये जो सुनाया सईद ने आपको, ये कुछ दिन पहले ये आके मुझे सुना गए थे दफ्तर। बड़े बरसों के बाद मुझे लगा कि इसके अंदर से कुछ एक अजीब सी नई खुशबू मैंने महसूस की। क्योंकि हिंदी फिल्मों के गाने लिख लिख के इसके अंदर कुछ मर गया था, दफन हो गया था। बिक तो तुम भी गए थे मेरे भाई। बिल्कुल सर, हर आदमी। और फिर रास्ता भूलने के बाद में कहीं से तुमको कुछ अपनी आवाज मिली। हम सब बिके हैं, अलग अलग वक्त पे पहले बिके हैं, पर बड़ी मुश्किल से कुछ लोग हैं जो मिलते हैं, जो संभालते हैं हमको। ये जो दोस्ती हमारी है एक अजीब दोस्ती है।
80s में ये आए थे यहाँ पर जोधपुर से लिरिक्स लिखने। हम काश बना रहे थे, आकाश हम कुछ अपनी आवाज़ ढूंढ ही रहे थे, बस सफ़र शुरू किया था। तो अभी हम कहाँ, हमारी क्या औकात थी कि हम इनका हाथ थाम के इनको काम दिलवाते। तो ये कुछ देर हमारे साथ घूमे, मगर फिर जैसे लोग थक के भाग जाते हैं, भाग गया ये। कट्टू जोधपुर जा रहा हूँ मैं फॉर अ बुक लॉन्च। एक अननोन फंक्शन, व्यक्ति का फंक्शन है जोधपुर में। मुझे पता चलता है कि ये शख्स वहाँ पर कहीं रहता है जोधपुर में। बड़ा दिल करता है कि काश ये टकरा जाए मुझसे। फिर इसका एक पर्सपेक्टिव, तुम वो पर्सपेक्टिव सुनाओ, फिर हम सुनाते हैं। क्या हुआ, मेरे छोटे भाई हैं, उनका नाम है राजू। तो अखबार में न्यूज़ आई कि भट्ट साहब एक किताब के विमोचन के सिलसिले में जोधपुर आए हैं। तो उसने मुझे कहा कि भाई आपके बड़े ताल्लुकात रहे एक ज़माने में महेश भट्ट साहब के साथ, तो आप क्या चलोगे उनसे मिलने? मैंने मना कर दिया, और मेरे मना करने की वजह बहुत छोटी सी थी कि उस वक्त तक भट्ट साहब एक बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके थे। इनका इंडस्ट्री में बहुत नाम हो चुका था, बहुत बड़े बड़े काम कर चुके थे, और इनकी एक इंटरनेशनली पहचान बन चुकी थी। तो मुझे लगा खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो वो जो उनके साथ मेरी बड़ी खूबसूरत मेमोरीज है, मैं उनको बर्बाद नहीं करना चाहता। वो एहसास जो था मुझे कि अगर बाई द वे मुझे नहीं पहचाना तो मुझे वो जो उनके साथ गुजारा वो अच्छा वक्त था, जो मेरे स्ट्रगल का वक्त था, मैं उस पर कोई दाग नहीं अगर लगाना चाहता। इसलिए मैंने भाई को मना कर दिया। मेरा भाई माना नहीं। अगले दिन सुबह फिर उसने कहा एक बार ट्राई करते हैं। तो अपना स्कूटर लेके आया कि भाई साहब क्या इरादा है? तो मैंने कहा यार जिंदगी में अपने बहुत जलील हुए अपने लिए। तो आज भाई की खुशी के लिए एक बार और जलील हो गया। नहीं पहचानेंगे तो नहीं पहचानेंगे। आप यकीन कीजिए, जिस होटल में ये ठहरे थे 5 सितारा, मैं वहाँ पहुँचा भाई के साथ। वो जिस शख्स की किताब के लिए ये वहाँ तशरीफ लाए हुए थे, वो सीढ़ियों से उतरते उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। मैं लॉबी में एंट्री हुई मेरी, और भट्ट साहब की नज़र मुझ पे पड़ी। आप यकीन कीजिए मैं अपनी जगह खड़ा रहा, ये सीढ़ियाँ भाग के और मुझे गले से लगा। मुझे इतनी अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे कि यार मैंने ये कैसे सोच लिया कि महेश भट्ट मुझे नहीं पहचाने। आप यकीन कीजिए मेरे उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वो दिन है, आज का दिन है, जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरी एक फिल्म, मेरी बेटी फिल्म बना रही है। हाँ अच्छा, के बाद नाम सुना। ये इसने थोड़ा हाफ हार्टेडली सुनाया, थोड़ा सा ये इमोशनल हो गया। मैं ऐसे ही नहीं भाग के आया। तुमने मुझे एक शेर सुनाया था बम्बई में, जब मैं शराब पीता था और तुम भी पीते थे, और हम जूहू पर बैठते थे और गालियां देते थे सारी इंडस्ट्री को कि हमारा जीनियस कोई पहचानता नहीं है ना, याद है? तो शेर था कि आंख भर आए जिस शख्स की, आंख भर आती है जिस शख्स की, अपने रोने पे मेरे दोस्त क्यों शर्मिंदा है, आंख भर आती है उस शख्स की जो जिंदा है। हाँ, तो ये शेर इन्होंने मुझे सुनाया था। तो मैंने जब देखा सईद को, तो ये शेर जैसे फ्रॉम द मिस्ट ऑफ टाइम एक्सप्लोडेड इन माय माइंड, एंड आई एड्रेस्ड यू विद दैट शेर, एंड देन आई वेंट एंड हग्ड हिम, और फिर मैं उसको ले गया अपने कमरे में। अब वहां से इनका नया चैप्टर शुरू होता है। इसने कहा मुझे आप लेट जाइए, आपके लिए कुछ लिखना है मुझे समझ नहीं आया क्या बोलता है मुझे। तो मुझे उसने लिटा दिया, एंड देन ही सैट डाउन बिहाइंड द डेस्क एंड ही सैट डाउन एंड रोट वेरी पैशनेटली, एंड देन ही गिव इट टू मी। और मैंने उसको पढ़ा, एंड आई फेल्ट समथिंग टर्न इन माई हेड, एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड पूजा। आई सेड, पूजा, our film is made. He had just written a song which was dedicated to me. आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में. He just sat down and wrote it there and there. उसका शेर क्या था? जिस धरती पर जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता,
इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है कौन बला है सीने में. And this song became the compass of Jism. And the most amazing thing about Jism was M.M. Karim, the great music director of India. साउथ इंडिया में बसते हैं, ये जोधपुर में LIC की पॉलिसी बेचते थे. मैंने इनसे कहा कि खबरदार तुम मुंबई में आए, अपनी पाकिज़गी को बर्बाद नहीं करना, वहाँ पर आके जाके दफ्तर पे जाके बैठे हो और फिर जलील कर रहे हो अपने आप को. तुम यहाँ पर LIC की पॉलिसी भेजो, यहाँ पर बैठ के ही काम करो. एंड ही वर्कड ऑन द म्यूजिक ऑफ जिस्म विद M.M. Karim over the phone, and all the songs were made by him and M.M. Karim over the phone and recorded in Chennai. And that became the beginning. And of course, I remember, Komal, if you remember Saya, you said the music of Saya was outstanding, though the picture did not do well. But I remember Komal telling me, "Ke Bhatt kya outstanding music," but the music, as Mithun said, was because of the extraordinary lyrics that were written by Sayyid Qadri. Kathir Shafai साहब मरहूम पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे. उन्होंने कहा कि भैया अच्छी शायरी अपना संगीत साथ लेके आती है. क्या बात. कि शायरी की कोख में ही उसका संगीत होता है. And a good music director, Mithun, is a person who doesn't do anything. He just goes to the depth of the words, and in the womb of those words is the melody. And that's what a man like Sayyid अपना M.M. Karim did. वो ज़बान समझते भी नहीं थे, मगर वो 10 मरतबा पूछते थे, "What does this mean, sir? What does this mean, sir? Khala means what, sir? Khala means what, sir?" And then he would understand and then he would compose it. So वहाँ से इनका सफर शुरू हुआ है और अब ये जो है यहाँ पर आ गए. मुझे एक बात का डर है कि तुम जिस कपड़े में यहाँ पर बैठे हो, तो LIC जो बेचता था या पॉलिसी बेचता था, अगर वो कहीं तुम्हारे अंदर दफन हो गया तो वो शायरी कहाँ से आएगी फिर. सो जरा इस शहर से बचो, अपना चांद जो है वहां पर छोड़ के मत यहाँ पर आओ. यू आर नॉट वेलकम या सईद कादरी. भाभी ले जा इनको वहां पर वापस, नहीं तो हमारा शहर जो है पता नहीं यहाँ पर खो जाएगा. बट आई एम सो हैप्पी दैट ही इज हियर. एंड आई थिंक ये तो बहाने होते हैं किताब का एक बुक रिलीज एंड ऑल दैट. इट्स अ वे टू कम एंड मेक मेमोरीज. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फ्रॉम द स्ट्रगल डेज ऑफ द 80s to the magical filmy meeting in Jodhpur, and a lost and found story to this happy ending. Who says Bollywood stories are lies? They happen, they happen, they happen. Okay. Thank you. So, but sir, one second, please. I'd like the family to join in and do a picture. I'm a man with numbers, but I would like to say this, to culminate this with what Bhatt Sahab said, is that this man who came and joined us with Jism. From Jism till now, Sayyid Bhai and Vishesh Films have done 24 films, and we are heading for the 25th film in this year. So we'll be celebrating Silver Jubilee, and it's been what a beautiful Silver Jubilee with Sayyid Bhai. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं यहाँ जो इस मौके पे तमाम लोग हाजिर हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. कुमार जी, रूमी जाफरी साहब, नरेश जी, मुकेश भट्ट साहब, कोमल जी, श्याम बजाज साहब, नरेंद्र बजाज साहब, चिराग, इवन सुनीता. मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ. दर्शन रावल, मेरे दोस्त नौशाद, क्षितिज तारे, गणेश तारे साहब, और यहाँ जो प्रेस आई है उसका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे आके यहाँ इज्जत बख्शी. सो नाइस ऑफ यू.